अच्छा बेटा, so quantum physics में we are done with photon, its energy hf, hc over lambda. These are very important expressions. That's why I've written again. 1 electron volt is 1.6 × 10⁻19 joule. Photoelectric effect is the process in which when a metal is exposed in electromagnetic radiation, then it gives off electrons. And those electrons coming out from metal surface are called photoelectrons. And then Einstein performed the experiment of photoelectric effect, due to which the particle nature of electromagnetic radiation was proved, right? So his equation was energy of photon, incident energy is equal to work function, which is energy required by electron to come out of metal surface, plus maximum kinetic energy of electrons. And this we have already discussed yesterday, that the emitted electrons are having range of energies, but only electrons from the surface ones will have maximum kinetic energy, and we will only consider those electrons from the surface. E is hf, phi is hf naught, which is the way to find work function. Phi is hf naught, f naught is threshold frequency. So if you know the threshold frequency, you can easily find work function as well. Okay, the first graph we made was kinetic energy against frequency. Okay, so this was a straight line. It was having positive x-intercept and negative y-intercept. Three quantities can be calculated from this graph. First one is gradient. If you find gradient of this line by taking any 2 points and you calculate the gradient gives you Planck's constant. It means if you use different metals, for all the metals, the common thing will be gradient. The gradient will be same for every metal. Why? Because gradient gives you Planck's constant. And Planck's constant is a universal constant. It never changes. Okay? Universal constant is 6.63 × 10⁻34 joule second. X-intercept here gives the minimum frequency, which is threshold frequency. How we can say this is minimum frequency? Because at this, the kinetic energy is 0. At minimum frequency, as it is on x-axis, so y-axis value is 0. So we say at minimum frequency, kinetic energy is 0. That's how we can say that kinetic energy chunki 0 hai, isliye this is the minimum frequency or threshold frequency. Y-intercept, negative y-intercept gives you work function. So this, if you just extend this line till negative y-axis, this gives you work function of the metal. Okay, how much energy is required by electron of that metal to come out of its metal surface. Okay, we were working on the second graph. This was the first graph, kinetic energy versus frequency, and now the second graph is 1 over lambda. Lambda is of course the wavelength of that radiation for which photon is part of. And as it is 1 over lambda, so it is per meter, 1 over meter, versus maximum kinetic energy of electron, which is in electron volt, like maximum kinetic energy of electrons. You know the equation. E is equal to phi plus Ke max. If you don't know the pattern, how to draw it, we can work from here कि ये line कैसे बनेगी. So E is hc over lambda. Phi is phi, which is work function. We can say hf naught, plus this is maximum kinetic energy. So we know the equation y is equal to mx plus c, which is the straight line equation. So what we can do is we can rearrange this equation. Okay, so y-axis, this is y-axis, so this quantity should only have the quantity that is plotted along y-axis, that is 1 over lambda, right? Okay, so this is hc over lambda. So what we can do is we can shift this hc on the other side. So shifting this, rearranging this, rearranging this gives you hc को आप उधर shift कर रहे हैं, so this is 1 over lambda equal, what we do is कि we shuffle them as well. So kinetic energy को हम पहले लिख लेते हैं, kinetic energy comes here, and as we are shifting hc over here, so it will be divided by that, plus hf naught or work function, whatever you want to write, divided by hc. ठीक है? अब now you can make the comparison. Y-axis is 1 over lambda, that is fine.
x axis is maximum kinetic energy, that is fine. And now what thing is left over there? Gradient will be hc. So we will be saying here that gradient of this graph will be 1 over hc, 1 over hc. ठीक है, देखो ना यहाँ पे nothing is left over there, so 1 ऊपर रह गया और नीचे divide by hc. So this gradient is equal to 1 over hc. And then for y-intercept क्या होएगा? Y-intercept will be work function over hc. It's better to write this as y-intercept because then you can get confused. अगर c लिखेंगे इधर भी c है तो वो थोड़ी confusion हो जाएगी. That's why I've written y-intercept over here. ठीक है, तो अब हम इससे अगर if we want to find h तो हम h कैसे निकालेंगे? 1 over gradient into c, where c is speed of electromagnetic radiation. ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ग्राफ में. इधर आपका डायरेक्ट ग्रेडियंट से h आ रहा था, बस इधर ये है कि आपका थोड़ा सा चेंज हो गया है. अगर आपने h निकालना है तो 1 ओवर ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय c करेंगे तो देन यू कैन फाइंड दैट. इसी तरह यहाँ से अगर हम वर्क फंक्शन निकालना चाहें, वर्क फंक्शन, तो उधर वर्क फंक्शन किससे निकल रहा था? नेगेटिव y इंटरसेप्ट से. यहाँ कैसे निकल रहा है वर्क फंक्शन? y इंटरसेप्ट मल्टीप्लाइड बाय h मल्टीप्लाइड बाय c. ठीक है, तो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देन यू कैन फाइंड फाई. इसी के क्वेश्चंस आते हैं, यही 2 ग्राफ हैं जिसके क्वेश्चंस आते हैं और यही वो आपसे पूछता है कि ग्रेडियंट प्लैंक्स कांस्टेंट निकालो. ग्राफ बना होगा, कहेगा बताओ भाई प्लैंक्स कांस्टेंट कितना है. अब आपको क्या पता कितना है? आप देखोगे भाई ग्राफ कौन सा है. अगर तो ग्राफ ये वाला है तो फिर आप कहोगे ठीक है ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी है तो इसके ग्रेडियंट से प्लैंक्स कांस्टेंट पता लगता है. ये कैसे पता लगता है प्लैंक्स कांस्टेंट? हम कहते हैं कि इसका जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट इज़ y ओवर x होता है. तो y एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी है, x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है. काइनेटिक एनर्जी का मतलब एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी एक्चुअली, तो एनर्जी ओवर फ्रीक्वेंसी. तो फिर आप सोचेंगे E इज इक्वल टू एच एफ, ई इज इक्वल टू एच एफ. तो यहाँ से अगर आप E ओवर F करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? H. तो दैट्स वाई आप कहेंगे कि भाई इसके ग्रेडियंट से आपको प्लैंक्स कांस्टेंट मिल रहा है. इसी तरह की वर्किंग आप यहाँ पे कर लेंगे इस जगह पे. लेकिन इसमें जब भी 1 ओवर लेमडा आएगा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपने भाई इसको फिर E को एच सी ओवर लेमडा और इधर 1 ओवर लेमडा आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. तो इस तरह करके ये आप याद नहीं रख सकेंगे. आप जब इस तरह करेंगे तो देन यू विल कम टू नो कि भाई ग्रेड मुझे अगर H निकालना है तो मुझे 1 ओवर ग्रेडियंट इंटू C करना है, मुझे ग्रेडियंट भी निकालना है, उसको C से मल्टीप्लाई भी करना है, फिर 1 से डिवाइड करना है. ओनली देन यू वुड बी एबल टू फाइंड प्लैंक्स कांस्टेंट. अब मुझे बताओ इस ग्रेडियंट इसकी कैसी शेप कैसे बनेगी? इसको देख के बताओ ना कैसे बनेगी. डिक्रीजिंग कैसे होएगा? नेगेटिव होएगा. नेगेटिव तो आ ही नहीं रहा, कहीं पे नेगेटिव साइन है? नेगेटिव इज नॉट देयर. तो ये देखो, अब ये हम इससे थोड़ा सा पेपर 5 भी सीख रहे हैं कि जब आपके पास ये इक्वेशन आ गई है, आप देखो ग्रेडियंट क्या है? पॉजिटिव. कहीं नेगेटिव साइन है? नहीं. वाई इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव. कहीं नेगेटिव साइन है? नहीं. इसका मतलब है ये ग्राफ नेगेटिव एक्सिस में नहीं जाएगा क्योंकि नेगेटिव है ही नहीं. यहाँ देखो, यहाँ जो है ये एक्स इंटरसेप्ट के बाद फॉर श्योर वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव ही होना था. मतलब अगर एक्स इंटरसेप्ट भी हो गया, आप उसको कंटिन्यू करते हैं तो आपके पास नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट आ जाता है. तो अब बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा? बाय लुकिंग एट ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट वैल्यूज. पहले ये देखो पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा? हाँ, पॉजिटिव बनेगा. देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं. मतलब आप देखो द थिंग इज कि इसको हम ये कह रहे हैं कि यार ये यूं बनेगा या ऐसे बनेगा, ये x या y. अभी दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. ग्रीन वाला बनेगा. हाँ गुड. इसमें y में ग्रेडियंट नेगेटिव हो गया है. देखो ना y में क्या हुआ है? ग्रेडियंट नेगेटिव हो गया है. तो ग्रेडियंट नेगेटिव तो हमारे पास है ही नहीं, ग्रेडियंट इज पॉजिटिव. मतलब यहाँ इक्वेशन में भी देखो कहीं हमें नहीं लग रहा कि भाई ग्रेडियंट नेगेटिव है,
यहाँ हमें लग रहा था इस जगह इस इक्वेशन में ग्रेडियंट नेगेटिव आता है, क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी है, एच एफ नॉट को आप दूसरी साइड पे भेज देते हो, ठीक है, तो वहाँ से आपके पास वो नेगेटिव आ जाता है। अच्छा जो वर्क फंक्शन है, ग्रेडियंट स्टिल इसका पॉजिटिव होता है, वर्क फंक्शन नेगेटिव आता है, दैट्स वाई हम कहते हैं कि इसका वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव पे जाके टच करेगा। तो इसका जो ग्राफ है वो यही बनेगा, एक्स वाला बनेगा, ठीक है, वाई वाला नहीं बनेगा। तो सिंपल इसकी लाइन जो है इस तरह की एक लाइन बनी होएगी और इसके ऊपर ऑफ कोर्स सारी वैल्यूज़ होंगी, वाई एक्सिस पे सारी वैल्यूज़ लिखी होंगी। तो यू कैन फाइंड when you have all the values over there and all the values on x-axis, so using that equation of course you can find gradient and you can find y-intercept as well। y-intercept तो डायरेक्ट आपको यहाँ से पता लग जाएगा y-intercept कितना है। अगर gradient आपको निकालना है तो you will take any 2 points और उसके बीच में आप gradient जो है वो इस तरह निकाल लेंगे। सो ऑल यू नीड टू डू इज़ gradient निकालो, y-intercept निकालो और फिर इनमें आप देखो लगा दो एंड यू कैन फाइंड प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन। लेकिन जब हम क्या ये वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, 1/λ है ना। अच्छा हाँ, इसलिए 1/λ है ना, दैट्स वाई। लेमडा नहीं है ना, लेमडा होता तो फिर डिफरेंट होता ना, इट इज़ 1/λ। ठीक है बेटा, इज़ दिस थिंग क्लियर? देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इसके क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, एक क्वेश्चन इस ग्राफ का आता है, एक क्वेश्चन इस ग्राफ का आता है, या ये आएगा या ये आएगा, दैट्स इट। और आपसे कैलकुलेशन यही करवाएगा, प्लैंक कांस्टेंट बताओ, वर्क फंक्शन बताओ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ। तो देखो इफ़ यू आर एबल टू फाइंड वर्क फंक्शन, तो इससे आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हो? यू विल से वर्क फंक्शन इज HF0, है ना। तो आप वर्क फंक्शन आपने इससे निकाल लिया ना, y इंटरसेप्ट इंटू एच इंटू सी, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ लिखोगे, इसका आंसर, और इसको आप h से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। This F0 is threshold frequency. Threshold frequency is the minimum frequency required for photoelectric effect to happen. ठीक है? Is this in clear? कोई अगर डाउट है तो डिस्कस कर लो। क्यों फातिमा? Is it clear? किस इधर इसको? अच्छा बेटा, इसको स्विच इसलिए करते हैं कि ये y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो यूजुअली हम ये करते हैं कि यहाँ पे ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक पैटर्न होता है, पहले y होता है इक्वल, फिर m, फिर x प्लस c। अब जो हमें गिवन इक्वेशन होती है उसको हमें इसके साथ कंपेयर करना होता है। तो कंपैरिजन तब होता है जब हम चीज़ें ऊपर नीचे एक जगह पे रखें। जिस तरह यहाँ y है तो हमें यहाँ वो लिखना है जो y एक्सिस पे प्लॉटेड है। तो y एक्सिस पे क्या प्लॉटेड है? 1/λ। तो मैंने इसको 1/λ बनाने के लिए कहा कि यार HC को कहा कि आप भाई उधर चले जाओ, क्योंकि मुझे सिर्फ 1/λ चाहिए। HC इधर मल्टीप्लाई था, न्यूमिनेटर में था, इधर जाके दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों के साथ मैंने डिवाइड किया है। फिर यहाँ मैं आ गया mx, m तो मैंने निकालना है जो ग्रेडियंट है, y इंटरसेप्ट भी निकालना है, लेकिन x मुझे पता है कि जो क्वांटिटी x एक्सिस पे प्लॉटेड है, तो वो क्वांटिटी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। इसलिए मुझे जो काइनेटिक एनर्जी है उसको पहले मुझे यहाँ इसके नीचे लिखना है, इधर वो आगे लिखा हुआ था, मैंने इसको पहले लिख दिया। दिस इज नॉट मेकिंग अ बिग डिफरेंस। ये अगर HF0 2 है, काइनेटिक 3 है, तो मैंने इसको बेटा ऐसे लिख दिया ना, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 2 + 3, 3 + 2, दैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, एक ही इक्वेशन के अंदर तो हम आगे पीछे चीज़ों को कर सकते हैं ना। अभी तो दोनों के पॉजिटिव थे, अगर नेगेटिव होता फिर प्रॉब्लम होती कि अगर यहाँ नेगेटिव होता फिर मुझे यहाँ भी नेगेटिव साथ लेके आना था, अगर ये नेगेटिव होता तो मैं नेगेटिव को साथ लेके आऊँगा, पॉजिटिव है तो फिर कोई मसला नहीं है, राइट? क्यों भाई, एनीथिंग एल्स? अनूर आप बताओ। सर प्लैंक्स कांस्टेंट असल में बताता क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, अच्छा प्लैंक्स कांस्टेंट, गुड क्वेश्चन। जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होता है कैपिटल G, वो क्या बताता है? ये जो कांस्टेंट्स होते हैं ये बेसिकली कुछ क्वांटिटीज़ को रिलेट कर रहे होते हैं और ये एक यूनिवर्सल पैटर्न बना रहे होते हैं कि भाई आप सब क्वांटिटीज़ को रिलेट इस तरीके से कर सकते हो। कांस्टेंट्स कितने हैं? एक प्लैंक्स कांस्टेंट है, एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक हबल्स कांस्टेंट है। ये 3 हबल्स कांस्टेंट हम आगे स्पेस में पढ़ेंगे, ओ लेवल्स में भी आपने पढ़ा होगा। हबल्स कांस्टेंट जो है वो यूज़ होता है गैलेक्सीज़ की स्पीड निकालने के लिए, ठीक है।
तो उसमें उन्होंने ये देखा कि यार जो चीज़, अब मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ क्योंकि ये कोई एक चीज़ नहीं बताता, ये बेसिकली कांस्टेंट हमेशा दो क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन बताते हैं कि आप किसी भी दो क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर कर लो, उन सब का आंसर यही आएगा जो कि कांस्टेंट होता है। जिस तरह बॉयल्स लॉ है ओ लेवल्स, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, अभी बल्कि हमने पढ़ना भी है थर्मल में, पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी या पी इज कांस्टेंट ओवर वी, सो पी वी इज कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को कोई नाम नहीं दिया, वैसे कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप उसी गैस की, एक ही गैस के प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ, एवरी टाइम यू विल गेट सेम आंसर, राइट, सेम आंसर। उस सेम आंसर को कांस्टेंट कहते हैं। तो कांस्टेंट बेसिकली रिलेट्स टू क्वांटिटीज विद ईच अदर, सिंपल इज दैट। कांस्टेंट्स relate two or more quantities in a pattern with each other। पैटर्न क्या होता है? क्योंकि you just have to multiply them। यहाँ पैटर्न क्या है कि आपने भाई मल्टीप्लाई करना है, whenever you multiply you will get same answer every time। इसी तरह प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है? E is hf, h is E over f। तो आप किसी भी फोटॉन की एनर्जी, किसी भी रेडिएशन की फोटॉन की एनर्जी को उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करें, एवरी टाइम यू विल गेट सेम आंसर, सेम आंसर, सेम आंसर। लाइक लाइट है, लाइट के फोटॉन की एनर्जी डिवाइडेड बाय लाइट की फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव के फोटॉन की एनर्जी डिवाइडेड बाय उसकी फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव के फोटॉन की एनर्जी डिवाइडेड बाय रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी। आप इन सब को डिवाइड करो, एवरी टाइम यू विल गेट सेम आंसर। तो जो सेम आंसर होता है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, और जिसने वो निकाला होता है वो उसके नाम पे आ जाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक ने किया था, मैक्स प्लैंक ने, तो वो प्लैंक्स कांस्टेंट उसने नाम रख दिया कि इस वैल्यू को हम प्लैंक्स कांस्टेंट आज से कहेंगे, राइट, ओके। मतलब हर चीज़ कोई फिजिकल चीज़ नहीं बताती ना। जिस तरह हमारे जहन में ये होता है ना कि अगर लेट्स से फोर्स है तो फोर्स से पता लगता है कोई चीज़ चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट्स ऐसे नहीं होते। कांस्टेंट्स डिफरेंट क्वांटिटीज़ को रिलेट करते हैं आपस में कि ये आपस में कैसे रिलेटेड होंगे, और फिर उसको आप यूनिवर्सली किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। और ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं ये, क्यों? क्योंकि जो कांस्टेंट्स हैं अभी तक बहुत कम है, बहुत कम, हार्डली 6 या 7 कांस्टेंट्स हैं, मतलब जो अभी तक पता लगे कि ये चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा हो गया। बस एक आखिरी इसका वी हैव टू डू अ शॉर्ट कंपैरिजन, मतलब दिस इज़ द लास्ट टॉपिक फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम अभी करेंगे। फिर हमारा ये चैप्टर जो है ये तकरीबन 60% कवर हो जाएगा, राइट। उसके बाद हमने थोड़ी केमिस्ट्री की चीज़ें पढ़नी है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ना होगा, ठीक है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल शायद आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हो, इधर भी पढ़ेंगे। ओके, so we can say conclusions for photoelectric effect. This is very important question. Usually ये जो question है ये 2 से 4 marks का आता है, 2 to 4 mark का question है ये, और ये ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि ये एंड रिजल्ट है उसका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इफ़ वी क्विकली रिकॉल बैक, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, आइंस्टाइन ने क्यों किया था ये एक्सपेरिमेंट, क्या वजह क्या थी इसकी? ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसकी नेचर क्या होती है, पार्टिकल नेचर होती है, राइट। मेन मतलब हर एक्सपेरिमेंट का एक पर्पज़ होता है ना, तो इसका पर्पज़ ये था कि यार ये जो रेडिएशन है ये इनकी नेचर पार्टिकल लाइक है। जिस तरह ये लाइट आ रही है लैंप से, इसके अंदर छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं जिनको फोटॉन्स कहते हैं, ठीक है। इसने एक्सपेरिमेंट किया, अच्छा, जो फिर इसने उसके खुद ही कंक्लूजन भी बताए, 4 कंक्लूजन। साथ जो दूसरे साइंटिस्ट थे जो क्लासिकल फिज़िक्स के हामी थे, जो 20th सेंचुरी से पहले की जो फिज़िक्स है, उन्होंने इसको ठीक है, उन्होंने कहा यार तुम सही कर रहे हो सारा, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के जो कंक्लूजन या रिज़ल्ट है वो हमारे हिसाब से ये है, आप गलत बता रहे हो, हम ये कह रहे हैं, ठीक है। तो हमने 2 टाइप्स ऑफ कंक्लूजन को साइड बाय साइड कंपेयर करना है। एक हमने करना है क्वांटम एक्सप्लेनेशन। क्वांटम एक्सप्लेनेशन का मतलब है मॉडर्न फिजिक्स, कि मॉडर्न फिजिक्स क्या कहती है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो एक्सपेरिमेंट हुआ था
उस पर इसने क्या कमेंट किया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है क्लासिकल फिजिक्स या फिर वेव थ्योरी। इन्होंने क्या कहा, क्योंकि जो क्लासिकल फिजिक्स या ओल्ड साइंटिस्ट है वो कहते थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स है, ये पार्टिकल नहीं है, ये वेव्स की तरह है। दीज आर वेव्स एक्चुअली, नॉट पार्टिकल्स, इसके अंदर कोई पार्टिकल वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, अब हमने इसके 4 पॉइंट्स कंपेयर करने हैं। तो फर्स्ट थिंग इज electromagnetic radiations have particulate nature. Photons, और photons की एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन और वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल इस तरह होती है। ये इनका पहला पॉइंट था, मतलब उसने कंक्लूड उसने कर दिया। देखो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है तो मैंने ये प्रूव कर दिया है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है, जो हम देख नहीं सकते। अच्छा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है हैव वेव नेचर, नो पैकेट्स। मतलब इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, पैकेट शैकेट कोई नहीं होते, इसमें वेव्स वेव नेचर है। और वेव नेचर के बाद साथ ही ये कहा नेचर having energy in continuous form inside waves. मतलब पहले ज़ाहिर है हम रिजल्ट से ही निकालते हैं कि इन्होंने कहा कि नहीं वो पैकेट्स होते हैं फोटॉन, इन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं है, पैकेट्स नहीं होते, वो कंटिन्यूस फॉर्म में वेव्स के अंदर होती है। जैसा इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो वाटर टैंक की, एक पाइप लगा हुआ है और पानी आहिस्ता 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 फिल इन हो रहा है, वो वेव थ्योरी है कि वाटर इज़ फ्लोइंग कॉन्टीन्यूसली। और क्वांटम ने ये कहा था कि नहीं वही वाटर टैंक है, उसके अंदर एक बड़ा सा पैकेट पानी का ला के एकदम से डाल दो तो वो एकदम से फिल हो जाएगा, राइट, सही है। ओके, सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज द एनर्जी ऑफ emitted electrons जो कि काइनेटिक एनर्जी है डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये ऊपर वाली बात कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये उन्होंने कहा कि भाई आप अगर इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं उनकी एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं तो यू हैव टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे आप। इन्होंने क्या कहा, नंबर 2 इन्होंने कहा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, जिनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं। वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी, ये कह रहा है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ लाइट रेज, राइट। जिस तरह अभी अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो मैं अगर ये ऑन करूंगा तो अभी इंटेंसिटी बढ़ गई है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ लाइट रेज जो है वो बढ़ गई हैं। तो ये इन्होंने कहा, तो इसका मतलब है यहाँ इन्होंने कह दिया कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी of EMR. EMR is electromagnetic radiation. अच्छा, उसके बाद next point, third point was related to number of electrons. So the number of photoelectrons emitted is proportional to intensity of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसको नंबर ऑफ वेज में कह सकते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स या फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं। सो वी कैन से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स
proportional to intensity of radiation. पॉइंट्स एक ही हैं लेकिन वो बस एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं. अब व्हाट डू यू थिंक इन्होंने क्या कहा होगा? इन्होंने क्या कहा होगा? अब ये गैस करो. इसी स्टेटमेंट के बारे में क्लासिकल फिजिक्स ने क्या कहा होगा? नहीं. या फिर देखो, इधर फ्रीक्वेंसी है, उधर इंटेंसिटी का. इन्होंने इधर इंटेंसिटी कहा तो उन्होंने क्या कहा होगा? फ्रीक्वेंसी. उन्होंने कह दिया कि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं. सो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स proportional to frequency of incident electromagnetic radiation. और कैसे? कुछ लिहाज से ये बात ठीक है लेकिन जो रिलेशन बताया वो गलत बता दिया. वो ये कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, नहीं सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. इन्वर्सली होता है लेकिन इन्होंने डायरेक्टली बताया था. ये थर्ड पॉइंट है. देखो एक दूसरे के वो बिल्कुल इस एक लिहाज से अपोजिट चल रहे हैं. ओके, नंबर 4 और लास्ट. इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. नो टाइम डिले. क्या मतलब? कि जो ही रेडिएशन आके मेटल को हिट करेगी उसी टाइम इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट इमिटिंग. इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. इन्होंने कहा नहीं, इट विल टेक सम टाइम. सो नंबर 4, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल कंज्यूम सम टाइम. एज एनर्जी in electromagnetic radiation is in continuous form. ये जो नंबर 4 वाला है ना, I can explain it a bit further for you. नंबर 4 में आप ऐसे समझो, हमारे पास we have two water tanks, two tanks, similar tanks. इनके अंदर यहाँ पे एक फुटबॉल पड़ा हुआ है. ये फुटबॉल X है, ये फुटबॉल Y. पहले इस एग्जांपल को देख लो बस, फिर लिख लेना क्योंकि उसके बाद ये ख़त्म हो गया. अब वेव थ्योरी ने ये कहा कि भाई हम ये करते हैं कि हम यहाँ से एक पाइप लगा देते हैं और इस पाइप के ज़रिए हम यहाँ से ना कॉन्टीन्यूसली पानी गिराएंगे. और एम क्या है? इस फुटबॉल को टैंक से बाहर निकालना है. फुटबॉल क्या है? इलेक्ट्रॉन. टैंक क्या है? एटम. तो उसकी एग्जांपल एक दी ना कि आपने, जिस तरह हम कहते हैं कि एक एटम में ये न्यूक्लियस है और साइड पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो रेडिएशन आती हैं, फोटॉन आता है, उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो ये है ना. लेकिन उसकी एग्जांपल समझाने के लिए दी गई कि एक वाटर टैंक है सिमिलर टू एटम और अंदर जो फुटबॉल है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन. तो हमें इस फुटबॉल को बाहर निकालना है, आपको एनर्जी देनी है. क्लासिकल फिजिक्स ने ये कहा कि भाई एनर्जी चूँकि कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूस पैकेट्स में तो नहीं है, इसलिए वो एक पाइप लगा हुआ है जिस तरह यूजुअली वाटर टैंक फिल होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पानी कंटिन्यूसली आ रहा है. और उसके बाद जब ये वाटर लेवल जो है वो राइज करके यहाँ पहुँच जाएगा इस जगह, तो फुटबॉल इस टैंक से बाहर आ जाएगा. जब पानी ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा तो फुटबॉल बाहर आ जाएगा. ऐसे ही है. लेकिन इसमें क्या होगा? बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है. लेकिन जो वाटर है या कोई और लिक्विड है या कुछ भी हो, फुटबॉल डेफिनेटली बाहर जाएगा, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. बेशक वाटर तेज़ आ रहा हो, स्लो आ रहा हो, वाटर की जगह कोई और लिक्विड आ रहा हो, फुटबॉल ने बाहर जाना ही जाना है. तो उन्होंने ये कहा, क्लासिकल थ्योरी ने ये कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन ने निकलना ही निकलना है. आप कोई भी रेडिएशन डाल दो, मतलब कोई भी मेटल है उस पर लाइट भी डाल दो, इलेक्ट्रॉन निकलेगा. लेकिन आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि एनर्जी कॉन्टीन्यूसली आ रही है. तो जिस वेव में एनर्जी कम होएगी वो ज़्यादा देर के लिए एक्सपोज रखोगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और फिर बाहर निकलेगा वो. राइट. और उस टाइम भी यही था कि भाई फिर दिन के टाइम मेटल से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकलते? तो उसकी जस्टिफिकेशन ये थी कि दिन के टाइम 6 या 8 या 10 आवर्स होते हैं, इतना ही टाइम होता है ना डे टाइम. तो डे टाइम में वो इतना टाइम काफ़ी नहीं है कि वो लाइट जो है सन की लाइट वो बाहर जो कॉपर या स्टील की ग्रिल्स या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सके. इतनी देर में शाम हो जाती है, हीट ख़त्म हो जाती है और बस ख़त्म.
वो एनर्जी गई, लूज हो गई। ये उनकी जस्टिफिकेशन ये थी, राइट। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में वो अब एक अलग बात है ना, मतलब ये तो एक जर्नल सी बात हो रही है, राइट। अच्छा, एक्सेप्शनल केसेस के लिए नहीं। क्वांटम ने क्या कहा, अब आप क्वांटम के लिए तो आप समझ गए होंगे क्या हुआ। क्वांटम के लिए हुआ कि उन्होंने ऑलरेडी एक पानी का बड़ा सा पैकेट ऑलरेडी है जो इस के अंदर, टैंक के अंदर फिट इन आ सकता है। तो वो क्या हुआ, वो सारा पैकेट उठाया, ठीक है, ये पैकेट है और इसके अंदर लेट से पूरा इसके अंदर वाटर है, क्लाउड नहीं है, ये पैकेट है, इसको इसके अंदर डाल दिया एकदम से। यूं ही एकदम से डाला तो क्या हुआ, फुटबॉल फौरन बाहर, टाइम लगे ही नहीं। टाइम लगेगा उसमें, नहीं लगेगा, वो एकदम से बाहर आ जाएगा। तो ये बात इन्होंने कही थी कि भाई ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इसमें टाइम नहीं लगता, चूँकि वो जो फोटॉन है वो पैकेट ऑफ एनर्जी है, तो इंस्टेंटली वो एनर्जी मिल जाती है और इलेक्ट्रॉन फौरन बाहर आ जाता है, राइट। समझ आ गई बात की। आना दोनों में बाहर है, इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, लेकिन क्या था, इसमें टाइम डिले बहुत है, इसमें टाइम डिले नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, राइट। तो ये हैं इसके 4 पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मेरा ख्याल है कोई मुश्किल भी नहीं है। क्वांटम व्यू क्या था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर है, इसमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करती है। आप ज़्यादा एनर्जी चाह रहे हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, कम एनर्जी चाह रहे हो, फ्रीक्वेंसी कम कर दो। उसके बाद जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। आपको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, ज़्यादा करंट चाहिए, आप इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ा दो, ठीक है। और उसके बाद ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर नहीं है, वेव नेचर है। और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, और उसके बाद जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, करते हैं लेकिन गलत बता रहे हैं, असल में इन्वर्सली होता है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और लास्ट केस में टाइम लैग बहुत है। कोई भी वेव, कोई भी रेडिएशन किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, बट इट विल टेक सम टाइम, ठीक है, ओके। इसके बाद देखो, अगर हमने किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नेचर, ये एक छोटी सी सब हेडिंग साथ कर लो, अगर हमने पार्टिकल नेचर या पार्टिकुलेट, असल में वो पार्टिकुलेट यूज़ करता है पार्टिकल की जगह, अगर हमने ये प्रूव करनी हो, ये 1 मार्क का यूजुअली क्वेश्चन आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अगर हमें वेव नेचर प्रूव करनी है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें इंटरफेरेंस, जो एएस वाले हैं, इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन, ये करना है। अगर इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन हो जाए तो फिर वो चीज़ वेव भी होती है। अब एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग कंक्लूजन आ गया। सो व्हाट्स द फाइनल ओपिनियन, फाइनल आंसर, फाइनल व्यू? फाइनल व्यू ये है कि भाई दोनों ठीक हैं, क्वांटम भी सही है, क्लासिकल भी सही है, लेकिन ड्यूल नेचर है। मतलब क्लासिकल थोड़ा सा रिजिड थे कि नहीं ये सिर्फ वेव है भाई, पार्टिकल हो ही नहीं सकता। उनमें अडॉप्टेबिलिटी थी कि ठीक है वेव है, लेकिन उसके साथ साथ असल में पार्टिकल नेचर है इसकी। तो इसलिए जो मॉडर्न व्यू है, करंट व्यू, वो है ड्यूल नेचर, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये क्या मतलब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल्स लाइक वेव्स और एग्जिबिट ऑल द वेव प्रॉपर्टीज लाइक इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन। एएस में आपने डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पैटर्न बने, ब्राइट डार्क, और डायफ्रैक्शन में भी होता है कि वो फ्रिंजेस बनती हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, दे एग्जिबिट वेव फीचर्स सारे, V=F लैम्डा लगता है, रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्रैक्ट होती हैं, डायफ्रैक्ट होती हैं, इंटरफेरेंस होती है, एवरीथिंग इज देयर। अच्छा, तो इसलिए ड्यूल नेचर, एक तो वेव लाइक, ट्रेवल्स लाइक वेव, और एनर्जी इन पैकेट्स। ये तो पार्टिकल नेचर किस वजह से है, द वे दे ट्रांसफर एनर्जी, तो क्योंकि वो पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, इसलिए उनकी पार्टिकल नेचर होती है, राइट। तो फाइनल व्यू क्या है कि इसकी ड्यूल नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, ठीक है। इसको लिख लिया, ये वाली साइड लिख लिया आप लोगों ने, ओके। अभी चलते हैं आगे। इसके आई होप आप लोगों के पास टॉपिकल्स हैं, ठीक है,
मतलब थोड़ा वर्कशीट के ऊपर रिलाई नहीं करना, टॉपिकल्स आपके पास हैं तो बस उससे साथ साथ क्वेश्चन आपने स्टार्ट कर देने। अब इसकी आइडियल सिनेरियो ये है कि आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सारा दोबारा पढ़ें, पढ़ के आज ही और आप इसके टॉपिकल में से इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा हम शुरू भी कर लेते हैं उसको। अभी हमारे पास कुछ मिनट्स हैं तो लेट्स मेक यूज़ ऑफ दैट। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज वेव नेचर ऑफ मूविंग पार्टिकल्स। देखो हम उसका रिवर्स काम कर रहे हैं। वेव नेचर ऑफ मूविंग पार्टिकल्स, A2 फिजिक्स। ओके, सो वेव नेचर ऑफ मूविंग पार्टिकल्स। अच्छा बेटा, ये एक उल्टा काम हो गया कि पहले क्वांटम में हम क्या पढ़ते रहे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव पार्टिकल नेचर। अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो मूविंग पार्टिकल्स हैं दे हैव वेव नेचर एज वेल। मतलब अगर मैं चल रहा हूँ तो मैं पार्टिकल हूँ ना, लेकिन मैं वेव की तरह भी वेव की तरह भी बिहेव कर सकता हूँ। मतलब एवरी पार्टिकल कैन बिहेव लाइक वेव, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए उनको सुपर हाई स्पीड पे मूव कराना पड़ता है, द स्पीड क्लोजर टू स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर कोई चीज़ क्लोजर टू स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रही हो, कोई मैटर इलेक्ट्रॉन, और वो जितनी स्पीड हाई हमें करनी है उसके लिए मास उतनी कम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम आपको पता है हम कभी स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकते, राइट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये। लेकिन जितने स्मॉलर पार्टिकल हैं जिनकी मैसेज बहुत कम है, जिस तरह इलेक्ट्रॉन है लेट्स से, तो इलेक्ट्रॉन को हम जो है वो क्लोजर टू स्पीड ऑफ लाइट लेके जा सकते हैं। तो अगर उसको क्लोजर टू स्पीड ऑफ लाइट लेके जाएं तो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करना शुरू हो जाएगा, राइट। और यही चीज़ बाकी चीज़ों पे भी फिट इन आती है कि अगर आप किसी टेनिस बॉल को फेंक रहे हैं या बुलेट फायर कर रहे हैं या कोई स्टोन फेंक रहे हैं या कोई चीज़ फेंक रहे हैं, तो अगर उस चीज़ की स्पीड बहुत फास्ट हो जाए तो वो चीज़ वेव की तरह बिहेव करना शुरू हो जाएगी, ठीक है, कहीं भी एनीवेयर इन द यूनिवर्स, ठीक है। सो एक्चुअली मतलब ये भी 100% प्रूवन है और ये बात ठीक है कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो असल में तो जो यूनिवर्स में क्या है, एनर्जी और मास ही है ना, दो ही तो चीज़ें हैं, एनर्जी और मास, बस बाकी सब कुछ इन्हीं के गिर्द तो घूम रहे हैं, राइट। तो ये दोनों चीज़ें भी आपस में इंटरलिंक्ड हैं। मास जो है, आप जिस तरह आइंस्टाइन ने कहा था, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, इज इक्वल टू mc²। सो सेम ऑन दैट पैटर्न हमने देखना है। तो ये जो काम है ये किया था डी ब्रोगले ने, डी ब्रोगले। सर तो उसका मोशन डायरेक्ट क्यों हो जाता है इतनी स्पीड में, मतलब ऊपर नहीं जाना शुरू हो जाता है क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड में लेके जा रहा है तो नहीं ऊपर नीचे। अब हमारे जहन में वेव का ये है ना, ऐसे तो नहीं है, वेव की प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो हम अगर वेव का सोचेंगे तो हमारे जहन में आएगा अच्छा ऐसे जाना चाहिए, ये वेव होती है। ये वेव नहीं होती है, तो हम ओ लेवल से हम बनाते वेव की शेप ये बनाते आ रहे हैं ट्रांसफर वेव की, और वो भी सिर्फ ट्रांसफर की, बाकियों की तो ऐसे नहीं होती, लॉन्गिट्यूडनल तो ऐसे नहीं होती, ठीक है। अच्छा हाँ, तो ये असल में प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फीचर्स होते हैं, फीचर्स की वजह से हम कहते हैं कि ये चीज़ वेव की तरह बिहेव कर रही है। और वो फीचर्स क्या है? वो फीचर्स हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फिर ये डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। अगर ये फीचर एग्जिबिट हों तो हम कहते हैं यार ये वेव है। तो अगर हमने कहा, डी ब्रोगले ने एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसने प्रूव किया था ये डायफ्रैक्शन के थ्रू, इलेक्ट्रॉन की डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस हुई थी। उसने कहा लो भाई देखो इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन कर रहा है, फ्रिंजेस बना रहा है, इसका मतलब है ये वेव है, क्योंकि ये तो वेव का टेस्टर है कि अगर ये दो टेस्ट हो गए पूरे तो वो चीज़ वेव है, और अगर ये टेस्ट हो गया तो वो चीज़ उसके अंदर पार्टिकल नेचर है। ओके, नेक्स्ट जो डी ब्रोगले के बाद हम यहाँ पे करेंगे बेटा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जो आपने क्वेश्चन करने हैं सिर्फ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के करेंगे, इनके नहीं करने। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मॉडल है। ये इलेक्ट्रॉन का बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन किस तरह होते हैं। केमिस्ट्री में आप KLM शेल पढ़ते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंट लिहाज से इसको देखेंगे। और लास्टली हम इसमें स्पेक्ट्रम देखेंगे। बस इंशाल्लाह कल और परसों 2 दिन हमने लगाने और ये हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अभी हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक मैटर वेव्स। टाइम हो गए? ओके चलो ठीक है, फिर ये मैटर वेव्स इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज